Good morning, everyone. I'm Dipali Yadav. Today I'm here to teach you about recurrence relation. Solution of recurrence relation with constant coefficient. Its working rule is first we have to find auxiliary equations. Then the case one is when roots are real and distinct. If our roots are real and distinct, then we use the formula yn is equals to a1 an की power n plus a2 an की power n dot an की power n, where a1 a2 a dot are roots. Case 2, when roots are coincident, then yn is equals to a1 plus a2x plus a3x square dot am into x in की power m minus 1 whole bracket में an. Case 3, when roots are non-repeated complex number, that is alpha plus minus I beta, then yn is equals to r की power n bracket में a1 into cos n theta plus a2 into sin n theta, where r is equals to under root of alpha square plus beta square. Let's take an example. an plus 3 into an minus 1 plus 2 into an minus 2 is equals to 0. Let an is equals to x की power n. Here we put in the place of an x की power n, then we get x की power n plus 3 into x की power n minus 1 plus 2 into x की power n minus 2 is equals to 0. Then we take the common x की power n minus 2, then we find the roots of the above equation, that is x is equals to minus 1 and minus 2. Here are two real and distinct roots. Then we use the formula an is equals to a1 into minus 1 की power n plus a2 into minus 2 की power n. Let us take another example. an plus 4an minus 1 plus 4an minus 2 is equals to 0. Let an is equals to x की power n. Here we place the value of an x की power n plus 4 into x की power n minus 1 plus 4 into x की power n minus 2 is equals to 0. Here we take the common x into x की power n minus 2, then we get these equations, and after solving the equation we get roots of x is equals to minus 2 n minus 2. Here the roots are repeated, roots are coincidence. Then we use the formula. Here, as we know, the formula for coincident roots is a1 a2x plus a3x square dot am into x की power n minus 1 whole bracket में a into a की power n. So we use this formula here. Then an is equals to a1 plus a2n whole bracket में a माइनस 2 है यहाँ पे, तो a माइनस 2 की पावर n कर देंगे हम. Then for particular integral, let recurrence relation is an plus capital A into a की power n minus 1 plus capital B into a की power n minus 2 is equals to fn. Here we take that example for working rule, and when we have to find the particular integral, then we use these formulas. That is, if fn is equals to n, it means अगर fn की वैल्यू n है, then the general formula of pi is p1n plus p2. if अगर fn is equals to n है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला p1n plus p2. अगर fn की वैल्यू n स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे p1n स्क्वायर plus p2n plus p2. And if fn is equals to a की power n है, then general formula of pi is p into a की power n. And यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे fn is equals to n स्क्वायर है, इसके फॉर्मूला में p1 p2 and p2 यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया p1 इंटू एन स्क्वायर प्लस q2 इंटू एन प्लस r. तो यहाँ पे हम तीन अलग अलग वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब तीन अलग अलग लेटर्स लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे बस p1 p2 p2 लिया है, पर ये तीनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी यहाँ पे. एंड इफ fn इज इक्वल्स टू a इंटू ए की पावर n, अगर fn की वैल्यू a इंटू ए की पावर n है, fn की वैल्यू n इंटू ए की पावर n है, देन जनरल फॉर्मूला ऑफ pi इज p1n प्लस p2 होल ब्रैकेट में a की पावर n.
ओके, आई रिपीट दैट अगर एफ एन की वैल्यू n इंटू ए की पावर n है, देन इसका जनरल फार्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए होगा p1n प्लस p2 होल ब्रैकेट में इंटू ए की पावर n। ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे कि समझने के लिए कि पी आई कैसे निकालता है। अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो ए एन प्लस फोर इंटू ए एन माइनस वन प्लस फोर इंटू ए एन माइनस टू इज इक्वल्स टू एन प्लस वन। तो हम इस इक्वेशन को पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके रूट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम पी आई निकालेंगे, देन हम इसके रूट्स निकाल के द फॉर्मूला में पुटअप करेंगे सारी वैल्यूज़। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए एन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन लिया है हमने, तो एक्स की पावर एन प्लस फोर इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस फोर इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस टू हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा एक्स की पावर एन माइनस टू कॉमन लेने के बाद हमारी इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू इन माइनस टू। यहाँ पे दो कोइंसिडेंस रूट्स आ रहे हैं, तो हमने पहले देखा था कि अगर दो कोइंसिडेंस रूल आ रहे हैं, अगर दो कोइंसिडेंट रूट्स आ रहे हैं हमारे एक्स के, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू एन होल ब्रैकेट में इंटू माइनस टू की पावर एन। ओके, अब बात आती है पी आई इंटीग्रल निकालने की। सो पी आई इंटीग्रल निकालने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू पी वन एन प्लस पी टू। पी आई इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होता है, अगर हमने देखा था पहले कि एफ एन इज इक्वल्स टू एन दिया हुआ है, एज हमने यहाँ देखा है कि अगर एफ एन की वैल्यू एन है तो इसका जनरल फार्मूला होता है पी वन एन प्लस पी टू। वही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे पी आई निकालने के लिए, दैट इज ए एन प्लस ए एन इज इक्वल्स टू पी वन एन प्लस पी टू। सो ए एन की प्लेस पे हम जो इक्वेशन दी हुई है उसमें ए एन की प्लेस पे पी वन एन प्लस पी टू रखेंगे। ओके, ये इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे ए एन की जगह पे पी वन एन प्लस पी टू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगी इक्वेशन पी वन एन प्लस पी टू प्लस फोर पी वन एन माइनस वन प्लस पी टू प्लस फोर पी वन एन माइनस टू प्लस पी टू इज इक्वल्स टू एन प्लस वन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू, तो हमें यहाँ पे P1 की वैल्यू मिलेगी P1 इज इक्वल्स टू वन अपॉन n। सो P1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम 9P2 माइनस 12P1 इज इक्वल्स टू 1 है, इक्वेट करेंगे यहाँ पे तो हमें P2 की वैल्यू मिलेगी 7 अपॉन 27। तो हमें P1 P2 की वैल्यू मिल गई है, तो हम P1 और P2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पे an इज इक्वल्स टू P1n प्लस P2 है, P1 की वैल्यू रख देंगे, P2 की वैल्यू रख देंगे, तो हमें an की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे देखेंगे an इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2n होल ब्रैकेट में माइनस टू की पावर n प्लस, यहाँ पे पी आई रख रहे हैं हम, ये पूरा हमारा पी आई वाला पार्ट है, तो ये P1 की वैल्यू थी 1/9, हम यहाँ पे 1/9 इंटू एन रख रहे हैं प्लस 7/27। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ हम एक एग्जांपल और लेंगे, यहाँ पे है a1 प्लस ए एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 3n इंटू टू की पावर n। तो ए एन की जगह पे हम x की पावर n रखेंगे, तो हमें यहाँ से x का रूट मिलेगा -1, तो सी एफ हो जाएगा इसका a1 इंटू -1 की पावर n। तो पी आई, इसका पी आई निकालने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी आई हमारी इस फॉर्म में है 3n इंटू टू की पावर n, तो पी आई है जो P1n प्लस P2 इंटू मतलब 3n का पी आई ये हो जाएगा, और 2 की पावर n एज इट इज़ लिख देंगे, ये हमारी पी आई की जनरल फॉर्म हो जाएगी। अब हमें पी आई की जनरल फॉर्म मिल गई है, तो हम ए एन की पावर जो यहाँ पे है उस ए एन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले में। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब ये इक्वेशन मिली हमें 2 की पावर n ब्रैकेट में P1n प्लस P2 प्लस P1 ब्रैकेट में n माइनस वन प्लस P2 होल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो इंटू 2 की पावर n माइनस वन मिलेगा। अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू में 3n इंटू टू की पावर n रखा है हमने। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है
P1n into 2 की पावर n प्लस P2 into 2 की पावर n प्लस P1n 2 की पावर n अपॉन 2 माइनस P1 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस P2 2 की पावर n अपॉन 2 इज इक्वल टू 3n इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 है तो ये पूरा इसका एलसीएम लेके हमने इसको इक्वेट किया है यहाँ पे, तो मिला है 3 इंटू P1n इंटू 2 की पावर n प्लस 3 इंटू P2 2 की पावर n माइनस P1 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 इज इक्वल टू 3n इंटू 2 की पावर n। हमने यहाँ पे इसका पूरा कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 इंटू P1n इंटू 2 की पावर n प्लस 3 इंटू P2 2 की पावर n माइनस P1 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 इज इक्वल टू 3n 2 की पावर n। ये इक्वेशन मिली थी हमें पहले। अब इसको हम इधर इक्वेट करेंगे तो जो 3 इंटू n है उसको अलग हम इक्वेट करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 2 की पावर n इंटू 3n P1 इज इक्वल टू 3n इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू हमें मिल रही है 2, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे P1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 3/2 इंटू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 है। P1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उसके बाद हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी। P2 की वैल्यू हमारी आ रही है 4/3। तो अब P1 P2 जो मिल रहा है हमारा, कि P1 और P2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो P1 इंटू P2 P1 इंटू n आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पे 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे 2n प्लस P2 की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी यहाँ पे 4/3। P2 की वैल्यू रखेंगे 4/3 होल ब्रैकेट में इंटू 2 की पावर n। ओके, ये हमारा PI आ गया है पूरा, हमने PI निकाल लिया है। अब PI निकाला है और CF ये है तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन की पूरी सॉल्यूशन ये हमें मिल जाएगी ऐसे। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। थैंक यू।